علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے، جس کی وجہ سے سندھ میں اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک اس وبا کے دوران 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 12 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 112 ہو چکی ہے۔ صوبے میں 358 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مداد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں کورونا کا پھیلاؤ پریشانی کا باعث ہے اور مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 17 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اقتدار انور۔ اقتدار، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ سندھ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات اس وقت ہو چکی ہیں۔ اب تک وبا کے دوران 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں اور 24 گھنٹوں میں 12 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 112 ہو چکی ہے اور صوبے میں 358 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مداد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں کورونا کا پھیلاؤ پریشانی کا باعث ہے۔ 30 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 17 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اور اب رخ کریں گے ضلع مردان کا، جہاں کرونا وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 افراد کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 166 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق مردان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 افراد کو آئسولیشن میں داخل کر دیا گیا۔ آئسولیشن میں مریضوں کی تعداد 49 ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص کا ٹیسٹ منفی بھی آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع مردان میں کرونا وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 افراد کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 166 ہو گئی ہے اور رپورٹ کے مطابق مردان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 افراد کو آئسولیشن میں داخل کیا گیا۔ آئسولیشن میں مریضوں کی تعداد 49 ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص کا ٹیسٹ رزلٹ منفی آ گیا ہے۔ تعداد 532 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29 مشتبہ افراد سے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے گئے تھے۔ ضلع میں اب تک کورونا وائرس سے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور نوشہرہ کے عوام کے لیے بڑی خبر ہے، کرونا وائرس کے مزید 2 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر میں وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد 21 ہو چکی ہے۔ محمد اسد رپورٹ کریں گے۔ نوشہرہ اسپتال میں کرونا وائرس کو شکست دے کر 2 مریض صحت یاب ہو گئے، جس کے ساتھ ضلع بھر میں ٹوٹل 21 افراد کرونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر شعیب نے کہا کہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں اب تک ٹوٹل 31 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ ہوئے۔ آج کے دن تک تقریباً 31 سسپیکٹ کیس ڈی ایچ کیو اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کیے گئے تھے، جن میں سے 9 لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو تھے، اور اس میں اب تک جو 2 لوگ پہلے ہمارے ساتھ ڈائیگنوز ہوئے تھے ان کی ٹیسٹ نیگیٹیو آئی ہیں اور وہ ریکور ہو گئے ہیں۔ ایم ایس ڈاکٹر شعیب کا مزید کہنا تھا کہ صحت یاب ہونے والوں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق زیارت کاکا صاحب سے اور دوسرے کا تعلق جہانگیرہ سے ہے، اور ان 2 مریضوں نے ہمارے ساتھ تقریباً 19 دن گزارے ہیں یہاں پہ۔ ان کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا وہ بھی پازیٹیو تھا، لیکن تیسرا ٹیسٹ جو ہو گیا تو وہ نیگیٹیو آیا۔ صحت یاب ہونے والے دونوں افراد کو گھروں کے لیے روانہ کر دیے ہیں، جبکہ ڈی ایچ کیو اسپتال نوشہرہ میں اس وقت 6 افراد زیر علاج ہے جو تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ محمد اسد، جی ٹی وی نیوز، نوشہرہ۔ اور نوشہرہ میں ضلعی انتظامیہ کے احکامات کو نوشہرہ کے شہریوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ سماجی فاصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسد سے۔ اسد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ نوشہرہ میں کرونا وائرس کے پے در پے وار جاری ہے۔ ضلع نوشہرہ میں اب تک ٹوٹل 200 مشتبہ افراد کے کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جس میں 53 افراد کے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ کرونا وائرس کے پے در پے وار کے باعث ضلعی انتظامیہ نوشہرہ نے لاک ڈاؤن کو مزید سخت کر دیا ہے۔ نوشہرہ میں اشیائی خوردنوش کی دکانوں کو صبح 9 بجے سے دوپہر 4 بجے تک کھولنے کی اجازت ہے اور 4 بجے کے بعد صبح 9 بجے تک کرفیو کی گئی ہے، جس سے میڈیکل سٹور جو
जो है वो स्पष्ट है। ताहम यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि नौशहरा के शहरियों ने इंतज़ामिया के अहकामात और हिदायत को हवा में उड़ा दिए हैं। नौशहरा के शहरी बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ारों में घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस क्या होता है किसी को कोई परवाह नहीं। दूसरी जानब नौशहरा कैन में कपड़े की दुकान, शूज़ और चप्पल के दुकानों में बंद शटर के अंदर गमी जपील लगा रहता है, जबकि नौशहरा की यूटिलिटी स्टोर और बैंकों पर भी शहरियों के जमी गपील लगे होते हैं और शहरियों की लापरवाही और गफलत के बायस नौशहरा में कोरोना वायरस कम होने के बजाय मजीद फैल सकता है। जी नौशहरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असद ने हमें अपडेट किया और अब आपको बताएंगे कि जी न्यूज़ की निशानदही पर जिला मिठियारी की इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई। मिठियारी दौरे के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात करने वाले लोगों की इंतजामिया ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिन्हें पहली लिस्ट में नजरअंदाज किया गया था। मजीद जान लेते हैं अली हैदर मीर की इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जब से कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, तब से जिला मिठियारी की इंतजामिया में खलबली मची हुई है। दौरा मिठियारी के दौरान गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वाले लोगों की इंतजामिया ने एक और लिस्ट जारी कर दी, जिन्हें पहली लिस्ट में नजरअंदाज किया गया था। याद रहे कि जी न्यूज़ ने पहली लिस्ट जारी होने पर फहरिस्त में रह जाने वाले नामों की निशानदही की थी। मिठियारी में गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वालों में मिठियारी के अलावा दीगर शहरों और इलाकों के लोग भी शामिल हैं, जिनमें मिठियारी के 96, न्यू सईदाबाद के 17, हैदराबाद के 6, बदीन हाला और गोलारची के 12 अफराद शामिल हैं। इंतजामिया ने तो अहकामात जारी कर दिए कि मुलाकातियों के टेस्ट होंगे और उन्हें घरों में क्वारंटाइन किया जाएगा। ताहम इंतजामिया ताहाल ये बताने से कासिर है कि मजीद क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि वबाई मर्ज घरों से निकलकर इलाकों में न फैले। अली हैदर मीर, जी न्यूज़, मिठियारी। बोरेवाला में एक डॉक्टर समेत 5 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 5 मरीजों का दूसरी मरतबा कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। सेहतयाब होने वालों को डॉक्टर्स को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। करंतना मरकज से भी एक ही खानदान के 3 अफराद सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए। बोरेवाला की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में गुज़िश्ता 22 रोज से THQ अस्पताल के डॉक्टर्स रजा खालिद समेत 5 अफराद दाखिल थे, जिनके गुज़िश्ता रोज पहले कोरोना टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आने पर उनके दोबारा टेस्ट भेजे गए थे तो भी नेगेटिव आ गए। तमाम अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, जिस पर DC विहाड़ी बकास रशीद ने आइसोलेशन वार्ड में जाकर सेहतयाब होने वाले डॉक्टर खालिद रजा समेत दीगर अफराद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, जबकि सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी डॉक्टर्स और सेहतयाब होने वालों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। घरों को रुखसत होने से कबल इन अफराद का कहना था कि जितने भी दिन वो अस्पताल में रहे, अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात से वो मुकम्मल मुतमईन हैं। और अब बात करेंगे अटक की, जहां कोरोना के मरीजों ने इजाफे के बाद प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हिफाजती इकदामात सख्त कर दिए हैं। डॉक्टर्स ने चेकअप के दौरान अपने आप को वायरस से बचाने के लिए कोरोना स्पेशल किट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि कोरोना की वबा से बचने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के एंट्री पॉइंट पर वॉक थ्रू सैनिटाइजर्स लगाकर मरीजों को उसके अंदर से गुजार कर अस्पताल में दाखिल होने की हिदायत कर दी गई है। मरीजों ने भी कोरोना के हवाले से डॉक्टर्स की तरफ से किए गए हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। और अब रुक कर लेते हैं लोधरा का, जहां ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से शहरियों को आगाह किया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में मुफ्त मास्क भी तकसीम किए। लोधरा में ट्रैफिक पुलिस कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से शहरियों को आगाह कर रही है और शहरियों में मुफ्त मास्क भी तकसीम किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से भी पैम्फलेट तकसीम किए। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए ट्रैफिक पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंचार्ज मोहम्मद रियाज का कहना था कि शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरी किसी से हाथ न मिलाएं और ना ही किसी से गले मिलें। लोधरा के बाद अब रुक करेंगे कश्मोर का, जहां के बख्शापुर थाना की हुदूद में शौहर ने अपनी बीवी और उसके साथी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। इत्तला पर पुलिस जाए वकुआ गांव मिट्ठल खान पहुंची और लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश कश्मोर जबकि मकतूल की लाश बख्शापुर सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई है।
حیدرآباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں معصوم رخسار کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر کے پارک میں لاش پھینکنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ حیدرآباد میں 6 سالہ رخسار کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر کے پارک میں لاش پھینکنے والے ملزم صدیق کو پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار کیا۔ جی نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں بچی ملزم کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم بچی کو کپڑے دلانے کے بہانے جی او آر کالونی سے لے کر نکلا تھا اور ملزم نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر پکڑے جانے کے خوف سے قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم صدیق نے معصوم رخسار کو قتل اور زیادتی کا اعتراف کر لیا ہے۔ اور اب خبر دیں گے آپ کو صادق آباد سے، جہاں گزشتہ روز فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے دونوں گرفتار ملزمان کو تھانہ منٹھار منتقل کرنے کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ گرفتار ملزمان گزشتہ روز واقعے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ ضلع لوور دیر کے علاقے تالاش کے دور افتاد گاؤں پٹو میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زندگی سے محروم ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 معصوم بچیاں بھی شامل ہیں۔ جاں بحق محمد نذیر، اس کی 8 سالہ بیٹی رمیسہ اور 4 سالہ قدسیہ کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی ہیں۔ گھر کے دیگر افراد سحری کے لیے باہر تھے، جو حادثے میں بال بال بچ گئے۔ اور اب بات کریں گے چونیا کی، جہاں اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے تحصیل کی تمام پھلوں اور سبزی منڈیوں کی چیکنگ کی۔ 11 افراد کو اشیاء ضروریہ کو سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر فروخت کرنے پر کارروائی کر کے حراست میں لے لیا گیا۔ سرخ مرچ، لیموں، پیاز، آلو، کھیرا اور کھجوریں زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے تمام منافع خوروں کو جیل بھیج دیا ہے۔ اور اب رخ کریں گے چونیا کہا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے تحصیل کی تمام پھلوں اور سبزی منڈیوں کی چیکنگ کی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 11 افراد کو اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر فروخت کرنے پر کارروائی کر کے حراست میں لے لیا ہے۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ سرخ مرچ، لیموں، پیاز، آلو، کھیرا اور کھجوریں زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے تمام منافع خوروں کو جیل بھیج دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شیرازی کی زیر سرپرستی ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اختر کی حسینی چوک کچا کھو پر بڑی کارروائی۔ بیکری کے گودام سے 1,38,000 کلو ملک پیک کے پیکٹس برآمد کر لیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائی اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے گودام سیل کر کے مالک عمران کو گرفتار کر لیا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ناجائز منافع خوری پر کچا کھو میں 4 دکاندار بھی دھر لیے۔ پرائس میجسٹریٹس نے دن بھر کارروائیوں کے دوران 77 ناجائز منافع خوروں کو 1,80,000 روپے کے جرمانے عائد کیے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں معاون خصوصی عثمان ڈار اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ مستحق لوگوں تک راشن پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوکل انتظامیہ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ ان کی مکمل طور پہ ہیلپ کریں گے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ نوجوان تھرو سٹیزن پورٹل ایپ رجسٹر کیے گئے تھے۔ یہ ایپ سے ہم ایک تو ان کو باقاعدہ الیکٹرانک ایک کیو آر کوڈ کے ساتھ آئی ڈی دینے جا رہے ہیں، تاکہ اگر انہیں چیک کیا جا سکے کہ یہ آفیشلی رجسٹرڈ ٹائیگر فورس کے جوان ہیں۔ چند روز قبل میں نے میڈیا رپورٹس میں دیکھا کہ کوئی ایسے نوجوان بھی دیکھنے میں آئے جو ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں تھے، تو یہ کسی سطح پہ بھی اپنی جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹس بنائے گئے ہیں اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان سے جو ان کی ممبرشپ ہے بطور ٹائیگر فورس وہ بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک میکنزم ہے وہ بھی ہم نے اپنی سٹیزن پورٹل ایپ کے ذریعے ہی رکھا ہے. تمام تر میسیجنگ، کس جگہ انہوں نے جانا ہے، کہاں انہوں نے ذمہ داریاں نبھانی ہیں، یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جو ہمارا سٹیزن پورٹل کا ڈیش بورڈ ڈسپلے موجود ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے آفیسز میں سٹیزن پورٹل کا باقاعدہ ڈیش بورڈ اویلیبل ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز وہاں کی جائے گی. دوسرا، جیسے ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان سے خطاب کریں گے، ایک ہم نے کووڈ-19 کے حوالے سے 40 منٹ کی ٹریننگ سیشن رکھا ہے ان کا، تاکہ ان کو اس کی بھی ساری آگاہی دی جا سکے کہ فیلڈ میں انہوں نے خود کو کرونا وائرس کے حوالے سے کس طرح انہوں نے احتیاط سے رہنا ہے. لیکن میں ایک بار پھر، چونکہ سندھ گورنمنٹ نے کافی ٹائیگر فورس کو لے کے کنٹروورسی کریٹ کی تھی، میں ان سے ایک دفعہ پھر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کروں گا سندھ گورنمنٹ سے، تاکہ وہ فیصلہ کریں. سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو ٹائیگر فورس میں رجسٹر ہوئے ہیں وہ منتظر ہیں سندھ گورنمنٹ کے اور ان کے کمشنر صاحبان کے، ڈی سی صاحبان کے، کہ وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور سندھ میں باقاعدہ کام شروع کیا جا سکے. بہت شکریہ. جو گورنمنٹ اعداد و شمار بتاتی ہے، ایک تو وہ ہے، دوسرا اگر آپ حقیقت کی طرف جائیں، مارکیٹس میں جائیں، مثلاً اس وقت پاکستان معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ معاون خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہر SOP کو فالو کروائیں گے اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں گے. بتاتے چلیں گے، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس اس لیے تشکیل دی ہے تاکہ ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اب بات کریں گے ڈیرہ مراد جمالی کی، جہاں ماہ سیام میں دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ اب لیمو بھی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے. ڈیرہ مراد جمالی میں ایک ہفتے قبل 200 روپے کلو فروخت ہونے والا لیمو اب 600 روپے کلو فروخت ہونے لگا ہے، جس پر شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حسین بخش سولنگی سے. حسین بخش، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ماہ سیام کا پہلا اشرا شروع ہوتے ہی ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی جو ہے مہنگائی نے سر اٹھایا ہوا ہے. اشیاء خریدنوش، دوسری اشیاء خریدنوش تو مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لیمو کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ڈیرہ مراد جمالی میں لیمو جو ہے وہ 600 روپے سے 700 روپے کلو بک رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی، جیسے کہ دوسرے فروٹ مہنگے ہو گئے، اسی طرح لیمو بھی 700 روپے 600 روپے فی کلو بک رہا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیمو کی قیمت میں اور دوسرے فروٹ کی قیمتوں میں کمی کی جائے، تاکہ غریب بھی روزہ رکھ سکے اور یہ فروٹ خرید سکے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، شہریوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ لیمو کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی کی جائے تاکہ ہر مسلمان روزے رکھ سکے. جی، ڈیرہ مراد جمالی سے مہنگائی کی صورتحال آپ نے جانی. اب بات کر لیتے ہیں جلال پور پیروالا کی، جہاں ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے منافع خوروں نے من مانے ریٹ مقرر کر لیے ہیں. پھلوں میں سیب 250، کیلا 150، خربوزے 120، تربوز 80 اور کھجور 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. لیمو 400، کریلا 60، بھنڈی 80، توری 80، آلو پیاز 70 اور پیاز بھی 70 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں نے مقامی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خور دکانداروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. کوہلو میں گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ ایکشن میں آ گئی. شہر میں ناجائز منافع خوری اور معیار اور مقدار کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے گئے.
اسسٹنٹ کمشنر کوہلو عبدالستار مینگل کی سربراہی میں تحصیلدار عبدل صمد مری کے ہمراہ گراں فروشی کرنے والے منافع خوروں کے خلاف شہر میں گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بازار میں لیویز کے ہمراہ چھاپے مارے گئے۔ چھاپہ مار ٹیم نے شہر میں واقع مختلف سبزی فروش، بیکریوں، میڈیکل اسٹورز، ریڑھی بانوں اور آٹا بیچنے والے دکانداروں پر چھاپے مارے اور صحت اور صفائی کی ہدایات جاری کی۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کا ضلعی انتظامیہ مردان کے ہمراہ کارروائی، 2200 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنک ضبط، ملوث افراد پر بھاری جرمانے بھی عائد کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر مردان کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہمایوں خان اور گل نواز خان بہمراہ فوڈ سیفٹی آفیسر شفیق احمد نے پولیس کے تعاون سے کارروائی عمل میں لائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد آصف خان چمکنی نے کہا کہ غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، جس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رخ کریں گے لیاقت پور کا۔ ضلعی انتظامیہ نے ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ترنڈا محمد پناہ اور خان بیلا میں کارروائی، 2 سٹور سیل کر دیے گئے۔ ذخیرہ اندوزی پر کریانہ مرچنٹ کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ دونوں سٹورز میں چینی، گھی، چاول اور دیگر اشیاء ذخیرہ کی گئی۔ جی نیوز پر پھلوں اور سبزیوں کو مہنگے داموں بیچنے کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے بورے والا انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ زائد قیمت پر لیمو فروخت کرنے والے وقاص نامی منافع خور کو چھاپا مار کر حراست میں لے لیا گیا۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ چودھری عبدالخالق ناصر نے گراں فروشی اور ریٹ لسٹ نہ ہونے پر دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے کیے۔ اور اب بات کریں گے کبیر والا کی، جہاں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی لاپرواہی کے باعث دکاندار اپنی مرضی کے ریٹ وصول کرنے لگے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نوید احمد چودھری سے۔ نوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، کبیر والا کی انتظامیہ اشیاء خرد و نوش کے جو ریٹ کنٹرول کرنے میں وہ بالکل ناکام ہو چکی۔ میں اس ٹائم موجود ہوں کبیر والا کی سبز منڈی میں اور فروٹ منڈی میں، جہاں پہ جو ہے رمضان شریف شروع ہوتے ہی جو ریٹ ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر میں بات کروں پھلوں میں سیب کی، تو سیب کی جو قیمت رمضان شریف سے پہلے تھی جو 150 روپے تھی، اب جو ہے 200 روپے ہو چکی ہے۔ اگر اسی طرح میں بات کروں کیلے کی، جو کیلے کا جو ریٹ تھا رمضان شریف سے پہلے وہ 80 روپے تھا، اب جو ہے 120 اور 100 میں جو ہے کیلا دستیاب ہے۔ دوسری جو سبزیوں میں اگر میں بات کروں تو پیاز کی جو قیمت رمضان شریف سے پہلے تھی 30 روپے تھی، اب 50 سے 60 روپے جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اسی طرح میں آلو کی بات کروں تو آلو جو ہے وہ ریٹ تھا اس کا 20 سے 30 روپے، اب جو ہے 50 سے 60 روپے جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اگر میں بات کروں لیمبو کی، جو رمضان شریف میں سب سے زیادہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، وہ جو 120 روپے رمضان شریف سے پہلے مل رہا تھا، اب جو ہے 400 سے 500 روپے جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اسی طرح دوسری سبزیوں میں جو ہے اسی 20 سے 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں کو حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کے ریٹ کم سے کم کیے جائیں تاکہ ہر آدمی کے جو ہے پھل بھی اور سبزیاں بھی پہنچ میں ہوں اور بآسانی خرید سکیں۔ جی نوید احمد چودھری ہمیں کبیر والا سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب رخ کریں گے گجرانوالہ کا، جہاں ماہ سیام میں ناجائز منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ آلو، پیاز، لیمو، گوشت کے بھاؤ پر فروخت ہونے لگے ہیں۔ شہریوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں میاں اعجاز کی اس رپورٹ میں۔ آلو 40 روپے کلو، 80 روپے کلو دے دینے۔ یہ غریب آدمی کہاں جائیں، سفید پوش آدمی کہاں جائیں۔ اس طرح کے تاثرات آج کل آپ کو گجرانوالہ کے تمام بازاروں میں ملیں گے، کیونکہ کہیں بھی آپ کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ نرخ ناموں پر اشیاء خرد و نوش فروخت ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بازاروں میں اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منافع خوروں کے ساتھ مل جائیں تو پھر ہر کوئی منہ مانگی قیمت ہی وصول کرے گا۔ لاک ڈاؤن تو پہلو نیمبو 40 روپے پا سن تے ہن 100 روپے پا مل رہے ہیں تے کوئی چیز نہیں ملتی بھی ہے۔ تواڈے سامنے کھجل خوار ہو رہے ہیں، ویلے پھرنے ہیں پہ تے اگ لگی پئی ہے۔ مہنگائی پہلے بھی بہت زیادہ تھی، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور مزید زیادہ بڑھ چکی ہے۔
रेट कुछ भी लेने हैं हाथ तो लगाने नहीं देते, रेट पूछ के हम साइड पे हो जाते हैं। लॉकडाउन की सताई हुई आवाम का कहना है कि एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, माफिया डट कर अपनी मनमानी कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने महंगे दामों शेख खुर्दो नोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला भर से तमाम एसी साहिबान को कार्रवाई का हुक्म तो दिया, मगर अभी तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा। कैमरामैन असद अब्बास के साथ मियां इजाज, GTV गुजरांवाला। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी माह रमजान के आते ही गिरा फरोशों ने सब्जियों और फलों के रेट बढ़ा दिए हैं। एडी फराज की रिपोर्ट देखते हैं। बिहाड़ी और कुर्बो जवार में माह सयाम शुरू होते ही शाह खुर्दो नोश के रेट आसमान से बातें करने लगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने फलों और सब्जियात के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए, जबकि इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, रमजान के आंदे नाल जिहड़े सब्जियां दे रेट और फलों के रेट जिहड़े ना बढ़ गए ने, साडी डिप्टी कमिश्नर से अपील हैगी है कि इन्हां दे रेट नूं कंट्रोल किया जाए। शहरियों के मुताबिक ऐसा लगता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ग्राम फरोश दुकानदारों को खुली छुट्टी दे रखी है और रोज़ादार सार्फिन इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि कीमतों का फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन शाहिद बाऊ के साथ एडी फराज, जी न्यूज़ बिहाड़ी। और पाकपतन में जिला इंतजामिया का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खावर बशीर ने दरगाह बाजार में छापा मारकर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 दुकानदारों को पकड़ लिया है। बताते चलें आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर खावर बशीर ने कपड़े की दोनों दुकानों को सील कर दिया है और दुकानदारों को सरकारी मेहमान बना लिया है। बरकतों और रहमतों का महीना भी मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया की गफलत और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के फाल न होने की वजह से शहरियों के लिए महंगाई का तूफान ले आया। सब्जियों और फलों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है। मजीद देख लेते हैं मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में माह रमज़ान की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की गफलत और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के सबब सेब 250, केला 150, खरबूजे 120, तरबूज खजूर 400 रुपए किलो तक जा पहुँची है। सेब 240 है, 200 है, 180 है, कम से कम 180 या 200 रुपए किलो सेब है। रमज़ान शरीफ से पहले यही सेब तकरीबन 160 बिक रहा था। गरीब आदमी कहाँ जाए, इन मंडियों का फ़ायदा क्या जब रेट इतना हाई है। बाजार चले जाओ वही रेट है जो मंडियों में रेट है, तो क्या फ़र्क है। शहर में मार्केट कमेटी के खुद साख्ता कीमतों के सबब सब्जियों की कीमतों में भी बिला जवाज इजाफा देखा गया। लीमू 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से गरीब शहरी माह सयाम के मुकद्दस महीने में भी शदीद अजियत में मुब्तला है। कैमरामैन चौधरी जवाद के साथ राव कामरान, GTV न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। और अब बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां माह सयाम में सब्जी और फलों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। शहर और मुज़ाफ़ात में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही गिरा फरोशों ने फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। लीमू 400 रुपए किलो, प्याज 50, आलू 60, अदरक 380, लहसुन 300 और टमाटर 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। ईरानी खजूर 400, सेब 200, खरबूजा 100 रुपए किलो, केले 120 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। और जारी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। दुकानदार फलों और सब्जियों की कीमतें रेट लिस्ट से जायद कीमत पर बेच रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई ना होने के बराबर है। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट सब अच्छा है की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को देकर बरी जिम्मा हो जाते हैं। जिला इंतजामिया नौशहरा का रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयाँ डिप्टी कमिश्नर नौशहरा शाहिद अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा सवन अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तलहा जुबैर ने की। कार्रवाइयों में गिरा फरोशी के मुर्तकिब और सूबाई हुकूमत के SOPs पर अमल न करने वालों के 4 प्लाजे सील कर दिए, जबकि गैर ज़रूरी कपड़ों और चप्पलों की दुकानें खुला पाने पर 19 दुकानों को सील और दुकानदारों को जेल भेज दिया गया।
कोरोना वबा की रोकथाम के सिलसिले में माह रमज़ान में मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और तरावी बाजमात अदा करने के बारे में हुकूमती हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाने के हवाले से पुलिस क्लब कोहाट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत के अफसरान, उलमा, कराए व मशाइख और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोहाट से वज़ीर अली बंगिश की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा की तदारुक के सिलसिले में रमज़ानुल मुबारक में अदा की जाने वाली इबादत मसाजिद और इमाम बारगाहों में मखसूस करने के लिए महकमा सेहत, उलमाए कराम और पुलिस एक पेज पर आ गए। अजलास से खिताब करते हुए DPO रिटायर मंसूर अमान ने कहा कि कोरोना एक वबाई मरज है, इसकी रोकथाम के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि इबादत के दौरान समाजी फासलों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में जरासीम कुश स्प्रे और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाएगा। हमारे मस्जिदों के जो इमाम साहबान हैं, उन्होंने जिस तरह से ताउन किया है समाजी फासलों को बरकरार रखने में, मेरे ख्याल में और किसी भी ज़िले में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौका पर उलमाए कराम ने भी कोरोना की रोकथाम के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर मनोआन अमल दरामद को यकीनी बनाने का अज़म दोहराया गया और कोरोना के एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाने का वादा भी किया। वज़ीर अली बंगश, जी न्यूज़, कोहाट। और खत्ता कश्मीर में इस्लाम सूफिया कराम की वजह से फैला। इसी सिलसिले में कई सदियां पहले हज़रत सैयद पीर अलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए और आपने सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में आज़ादारी कायम की। इसी हवाले से देखते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से अरहम शेख की रिपोर्ट। पीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती। हजरत सैयद पीर अलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुज़फ़्फ़राबाद के ऐन वस्त में वाक़या है। मुल्क के तुलो अर्ज़ से लोग इस मज़ार पर हाज़री देने आते हैं ताकि इनकी मुरादें पूरी हो सकें। वैसे तो जो है अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, लेकिन ये वली अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक वसीला भेजा हुआ होता है। जो लोग होते हैं वो इनको वसीला समझ के जो है इनके ज़रिए मांगते हैं और फिर जो है अल्लाह ताला इनके वसीले से जो है लोगों को देते हैं। हजरत सैयद पीर अलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 450 साल पहले मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए और आपने सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ादारी कायम की। हम तकरीबन 1665-70 के दरमियान यहाँ हमारे बावजदाद तशरीफ़ फरमा हुए और ये ज़ियारत हमारी तकरीबन 450 साल से, और ये क्या कहते हैं, आज़ादारी बाबा ने यहाँ कायम की है और उनके सबसे बड़ा मोइज़ात यही है, वो आले नबी औलाद अली हैं। वलियों के दरबार पर हाज़री देने से मुरादें भी पूरी होती हैं और कल्ब को सुकून भी मिलता है। अल्लाह के घर के बाद जो सुकून किसी वली अल्लाह के दरबार पर जाकर मिलता है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। कैमरामैन अब्बास ज़रीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। लियाकतपुर में पुलिस थाना शेदानी शरीफ की बड़ी कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 2 डकैत गैंग के 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 14 लाख का माल मसरूका भी बरामद किया गया। DSP सर्कल लियाकतपुर मोहम्मद असलम खान ने मीडिया को बताया कि थाना शेदानी शरीफ पुलिस ने चोरी, डकैती और सरका बिलजबर के मुतादिद मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके 14 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल, मवेशी, मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद किया है। फैयाज सगरानी, मुख्तार अहमद पताफी और अब्दुल गफूर कला को गिरफ्तार करके एक कलाशनकोव, एक 12 बोर बंदूक, 4 पिस्तौल, 12 बोर बमा रोंदू कारतूस के अलावा 6 मोटरसाइकिलें, नकद रकम और 6 बकरियां, एयर कंडीशनर, मोबाइल और दीगर सामान बरामद किया है। ठुल में एक और हव्वा की बेटी को मौत की नींद सुला दिया गया। बेरहम शौहर ने अपनी 30 साला बीवी को मोटरसाइकिल से बांधकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। ठुल के थाना C सेक्शन की हुदूद नवाही गांव में मोहम्मद हसन सरकी में बेरहम शौहर ने अपने बाप के साथ मिलकर 6 बच्चों की मां 30 साला सूबिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। जाँ बहक होने वाली खातून के वर्सा का कहना था कि सूबिया खातून का शौहर और ससुर दोनों मिलकर आए रोज़ बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। जबकि थाना C सेक्शन पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर कत्ल होने वाली खातून की लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ठुल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दी है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी।
कनकोट की बात की जाए तो कनकोट ए सेक्शन थाना की हदूद गुलशेर मोहल्ला में मीरानी कबीले के 2 ग्रुपों में झगड़ा, लाठियां लगने से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। झगड़े के दौरान लाठियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। लाठियां लगने से 55 साला अली नवाज मीरानी जाँ बहक हो गया, जबकि अली रजा मीरानी शदीद जख्मी हुआ। मुरसा ने लाश और जख्मी को उठाकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़या कुत्ते को पत्थर मारने पर पेश आया। झगड़ा करने वाले चचाजाद भाई हैं और वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से लॉकडाउन से परेशान खानदानों में रमजान पैकेज तकसीम करने का सिलसिला जारी है। नादार और मुस्तहिक अफराद में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। एहसन अली की रिपोर्ट देखते हैं। खिदमत खल्क के जज्बे की हकीकी तस्वीर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, जिसने लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले 1500 खानदानों में रमजान पैकेज तकसीम करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। राशन तकसीम करने वालों का कहना है कि मरहला वार ये सिलसिला जारी रहेगा। देही इलाकों के मुस्तहिक बेरोजगार अफराद ने बाइज्जत तरीके से मिलने वाली इस इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। ये FFC वाले जो हजरात आए हैं उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को याद किया और हमारे साथ तावन किया। जो हम में से गरीब लोग थे उनको आपने उनकी इमदाद की। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 275 फैमिलीज़ को आज बुलवाया हुआ है ताकि एक तो सोशल डिस्टेंसेस के हवाले से उनको मेंटेन रख सकें, और यहाँ पर बाकी जो लोग रह जाएंगे उनको हमने कल जो है ना राशन की तकसीम करनी है। और ये मजदूरों काम बंद हो गए हैं, लॉकडाउन हो गया है, उसकी वजह से घर में परेशानी है, राशन नहीं था, राशन देने हैं। FFC वालों को शुक्रिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने खल्के खुदा को इस मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हजारों घरों के चूल्हे फिर से जल उठे हैं। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, जी न्यूज़, सादिकाबाद। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद के लिए माह रमज़ान में मदद किसी मसीहाई से कम नहीं है। मुल्तान में भी ऐसे गरीब परवर लोग हैं जो अपनी मदद आप के तहत मुस्तहिकीन की इमदाद करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से मोहम्मद सकलैन। दुखी इंसानियत की खिदमत इस्लामी तालीमात का वो पहलू है जिसे दीगर मज़ाहिब में मुमताज़ करता है। माह रमज़ान में मखलूक खुदा की मुश्किलात को दूर करने में जहाँ दीगर इदारे फ़ाल हैं, वहीं प्रॉस्पर चैरिटी के नौजवान लॉकडाउन से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए भी कोशां हैं। में ख़ुसूसन दिहाड़ीदार तबका, उसके लिए प्रॉस्पर चैरिटी की तरफ से ज़िला मुल्तान में जिस तरह पूरे मुल्क में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है, मुल्तान में भी इंतज़ाम किया गया। 200 घरानों तक ये राशन पहुंचाया जाएगा। 200 घरों तक राशन पहुंचाने वाले ये नौजवान इन खानदानों के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। हालिया दिनों में कोरोना की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, हम प्रॉस्पर चैरिटी की तरफ से उनके लिए 200 घरों का राशन आज इंशाअल्लाह ताला हर किसी के घर में पहुंचा देंगे। ज़रूरत इस अम्र की है कि लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की मदद के लिए हुकूमत के साथ साथ मुखय्यद हज़रात भी आगे बढ़ें और इनकी मुश्किलात का मदावा करें। और रमज़ानुल मुबारक के दौरान ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाके पीने के पानी से महरूम हैं। वॉरबर्टन और महल्ला ईदगाह के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन साफ पानी को तरस गए हैं। मलिक उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखते हैं। पानी जिंदगी की अलामत है, मगर जहाँ पानी मुयस्सर ना हो तो वहाँ जिंदगी कैसे गुजारी जाए? यही सवाल इस वक्त शहर मोहल्ला ईदगाह के हजारों लोगों का है। 1 साल कबल शहर भर में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए थे, जो अब नाकारा हो चुके हैं और शहरी पानी के लिए तरस रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हम पानी के लिए परेशान हैं, किसी को नजर नहीं आता। ये जो फिल्टर यहाँ पे चल रहा है, इस पे कोई सफाई नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है। मोहल्लेदार सभी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। रोजे की हालत में ये लोग जड़े ने ना बहुत तंग ते परेशान होके तो बड़ी दूरों जाके अपना पानी लैके आते हैं। हमारी हिसाबों से अपील है कि यहाँ पर फिल्टर की जो हम साफ पानी पीते थे, हजारों लोगों को इसका पानी मिलता है, जो अब बेकार पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। अफसरान की नाअहली की वजह से रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी वॉरबर्टन मोहल्ला ईदगाह और मुस्तफाबाद के अवाम को पीने के पानी के बहरान का सामना है। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना और दीगर अफसरान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवा कर उसे खोला जाए और शहरियों को पीने के पानी की किल्लत से निजात दिलाई जाए। मलिक उस्मान सुंदराना, जी न्यूज़, ननकाना साहब।
विहाड़ी में जिला इंतजामिया के रिलीफ पहुंचाने के दावे बेकार साबित हुए। रमजान शुरू होते ही दुकानदारों ने सब्जियों, फलों और मशरूबात की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया के आवाम को रमजानुल मुबारक में रिलीफ पहुंचाने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। माह रमजान शुरू होते ही दुकानदारों ने सब्जियों, फलों और मशरूबात के रेट्स में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। रमजान से कबल 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली खजूर 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि फालसा 600 रुपये और आलू 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा है। सब्जियों, फलों और मशरूबात की कीमतें भी दुगनी कर दी गई हैं। और मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पहले से लॉकडाउन से सताए गरीब और मुतवस्सित तबके को मज़ीद परेशानी में डाल दिया है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही कबीरवाला अब्दुल हकीम सराय सद्दू में अशया खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफे से लॉकडाउन की वजह से मुतासर होने वाला गरीब और मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशानी का शिकार है। इस वक्त कबीरवाला की मार्केट्स में खजूर की कीमत 320 से 350 रुपए तक जा पहुंची है, जो कि रमजान से पहले 200 रुपए थी। इसी तरह केला 80 रुपए से 130 रुपए, जबकि आलू 40 रुपए से छलांग लगाते हुए 80 रुपए तक जा पहुंचा है। और माह रमज़ान आते ही ज़फ़रवाल में सब्जियों और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खजूर भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं, फ्रूट मार्केट में ही मौजूद है हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी। जी कलीम अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़फ़रवाल फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे, एक तरफ तो मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का जो दिन है वो बेकाबू हो चुका है। मैं इस वक्त ज़फ़रवाल में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पे रेटों की बात करेंगे तो रमज़ान से पहले जो आलू के रेट था वो 40 रुपये किलो था, मगर जो ही रमज़ान शुरू हुआ आलू का रेट जो है वो 70 रुपये किलो हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर नींबू की बात करेंगे तो रमज़ान से पहले जो नींबू था वो 180 रुपये किलो था, मगर जो ही रमज़ान शुरू हुआ तो नींबू के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें करने लगे और 400 रुपये किलो हो चुका है। हम डीसी नारोवाल और एसी ज़फ़रवाल से मुतालबा करते हैं कि इन रेटों पे जो है वो काबू पाया जाए, ताकि गरीब बंदा जो है वो अफ्तारी में जो है वो इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। ओकाड़ा के बाद अब बात करेंगे लोधरा की, जहां रमज़ानुल मुबारक के महीने में महंगाई और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है और टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्चें, लीमू जैसी बुनियादी चीज़ें भी बेहद महंगी कर दी गई हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही माह सयाम शुरू हुए हैं तो अशिया खुर्द नोश उकाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो आवाम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हमेशा माह सयाम में कीमतें जो हैं दुगनी तिगनी रेंज तक चली जाती हैं, जो कि शहरियों की पहुँच से बाहर हो जाती हैं। जबकि दीगर इस्लामी ममालिक की अगर बात की जाए तो उधर रमज़ानुल मुबारक के महीने में आवाम के लिए स्पेशल पैकेजेस इस हवाले से होते हैं। अगर मैं उकाड़ा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, अगर मैं बात करूँ लेमन की तो 300 से 400 रुपये तक जो है लेमन पर केजी फ़रोख्त किया जा रहा है, जो माह रमज़ान से पहले सिर्फ 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह से अगर मैं भिंडी और करेलों की बात करूं तो वो 150 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो 40 रुपये माह रमज़ान से पहले फ़रोख्त हो रहा था 75 से 80 रुपये तक उसकी कीमत जो है वो पहुंच चुकी है पर केजी के हिसाब से। इसी तरह से मैं अगर सेब की बात करूं तो 150 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला 120 और 150 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला सेब 300-350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। खजूरों की अगर मैं बात करूँ तो 400 रुपये पर केजी इस वक्त जो है खजूरें फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तो वो मीठी नींद सो रही हैं। शहरियों को दुकानदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया हुआ है। दुकानदार मन माने रेट हिसाब से वसूल कर रहे हैं और दुकानदार जो कस्टमर है इस हवाले से बेबस दिखाई देते हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पहले से ही लॉकडाउन की चक्की में पिसी हुई अवाम मुतालबा कर रही है आला काम से कि नशिया खुर्दनोश की चीज़ों पे कीमतों के कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी इससे मुस्तफीद जो है हो सके। जी मोहम्मद आसिफ खोकर ने हमें ओकाड़ा से अपडेट किया। अब रुख करेंगे लोधरा का, जहां रमज़ानुल मुबारक के महीने में फल और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च और लीमू जैसी बुनियादी चीज़ें भी बेपनाह महंगी कर दी गई हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने अशिया खुरनोश समेत सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। गरीब समेत मुतवस्सित तबके के लोग शदीद परेशान। डिप्टी कमिश्नर लोधरा से नोटिस लेने का मुतालबा। अफ्तारी के दस्तरखान की जीनत, समोसे और पकौड़े और उनकी तैयारी के लिए टमाटर और प्याज, आलू, हरी मिर्च, लीमू जैसी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सरकारी दावों के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक से कबल अशिया की कीमतों में कमी के ऐलानात किए गए और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम की गई, लेकिन मुनाफाखोरों ने
ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ाकर अशियाए खुरोनोश, फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा करके उस बाबरकत महीने में मुतवस्सित तबके के दस्तरखान को मजीद तंग कर दिया है। पाक पतन हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया के अवाम को रमज़ान में रिलीफ पहुंचाने के दावे धरे के धरे ही रह गए। रमज़ान शुरू होते ही दुकानदारों ने सब्जियों, फलों और मशरूबात के रेट्स में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया के अवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ पहुंचाने के दावे धरे के धरे रह गए। माह रमज़ान के शुरू होते ही दुकानदारों ने सब्जियों, फलों और मशरूबात के रेट्स में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। राजनपुर में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को पड़ लग गए हैं, जिसकी वजह से रोजेदारों को अफ्तारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मजीद जान लेते हैं नसरुल्लाह गबूल की इस रिपोर्ट में। माह सियाम बरकतों और रहमतों का महीना है। जखीरा अंदोज और गिरा फरोश इस बाबरकत माह में आवाम को लूटने के लिए लंगोट कस लेते हैं। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लीमू और खजूर जो इफ्तारी में दस्तरखान का जुज समझा जाता है, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। लेमन, आलू, खजूर ये बहुत ही महंगा है, हमारे पहुंच से बहुत ही दूर है। ये चीज़ें हम खरीद नहीं सकते। एक तरफ गिरा फरोश आवाम को दोनों हाथों से लूटने का अज़्म बरकरार रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ स्पेशल ब्रांच के साथ इंतजामिया कार्रवाई करने में मसरूफ अमल दिखाई देती है। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह गबोल, GTV न्यूज़, राजनपुर। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली की, जहां लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 38 मुकदमात कायम करके 104 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में 17 गाड़ियां और मोटरसाइकिल जब्त भी की गई। इसके अलावा इंतजामिया ने कार्रवाई करके 15 दुकानें सील कर दी और 61,000 रुपए के जुर्माने किए गए। जिला कंदकोट में टिड्डी दल ने एक बार फिर तबाही मचा दी। भिंडी और गंदम की फसल समेत पेड़ पौधों को चट करने लगा। किसानों ने आफत ज़दा करार दे दिया। लाखों रुपए के नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है और जिला इंतजामिया भी बेबस दिखाई देती है। और फोर्ट अब्बास में डकैती की वारदात में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान से 2,20,000 रुपए और असलहा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में नदीम, यासीन और रहमत शामिल हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हाफिजाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में 36 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किए, जिसमें 5 रुकनी गिरोह कासिम उर्फ कासू गैंग समेत 36 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। लोअर डीर में रेस्क्यू 1122 ने सर्विसेज का आगाज कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि लोअर डीर की तमाम तहसीलों में भी जल्द रेस्क्यू 1122 सर्विसेज शुरू की जाएंगी। तफसीलात जान लेते हैं रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल रेस्को 1122 की हिदायत पर लोअर दीर में रेस्को 1122 ने अपनी खिदमत शुरू कर दिया है, जिन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेमरगरा शहर समेत जिले के दर्जनों मुकामात पर क्लोरीन स्प्रे कराया गया है, जबकि कोरोना के मुस्तबी मरीजों को भी तेमरगरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्को 1122 के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इजहार आलम और स्टेशन इंचार्ज सनाउल्लाह ने मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रेस्को 1122 मेडिकल इमरजेंसी, हादिसात और आग लगने की सूरत में खिदमत सर अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि उनके साथ 2 एम्बुलेंस और 4 इमरजेंसी सर्विस वाला गाड़ी मौजूद है। हमने जिस तरह इलाकों को देखकर जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आई है, तो वहाँ पे हमने पूरी तौर पर क्लोरीन स्प्रे जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है वो कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए उनके एहलकार 24 घंटों अवामी खिदमत के लिए 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि लोअर दीर के तमाम तहसीलों में भी जल्द रेस्को 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।